Good morning, class 10th students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the second part of two stories about flying. The second part lesson is Black Aeroplane. It is written by Frederick Forsyth. This is an adventurous story of a flight of an aeroplane which the narrator undertake. Okay, let us start. I am here on page number 37. Okay, the black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. Now, this air travel is related to night hours. The moon was coming up in the eastward direction in the sky, just behind the aeroplane of the narrator. And stars were shining in the clear sky above me. At the same time, as it was night time, stars were shining in the clear sky just above the aeroplane of the narrator. There wasn't a cloud in the sky. There was not a single speck of cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Now the narrator was extremely happy that he was flying just above the sleeping people living in the outer area of the country, that is rural areas. Countryside means rural areas. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. Now here narrator was on his journey from France. He was returning back to England. At that time, he was flying one old Dakota aeroplane. Okay. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. Now, here the narrator was just thinking about his holidays, and he was eagerly waiting to be along with his family members, that after returning to England he will enjoy good time in the company of his family members. I looked at my watch, 1:30 in the morning. It was late hours of night. 1:30 a.m. was there. The time was 1:30 a.m. Okay, when the narrator looked towards his watch. Let me explain you Hindi also. First paragraph. आकाश में चंद्रमा पूर्व दिशा में चमक रहा था, यानी कि उगा हुआ था नरेटर के ठीक पीछे, और साफ आकाश में उसके नरेटर के विमान के ऊपर आकाश में तारे चमक रहे थे। वहाँ आकाश में कोई बादल वगैरह नहीं थे, और नरेटर इस बारे में प्रसन्नता महसूस कर रहा था कि वो अकेला ऊपर आकाश में सोते हुए जो सुदूर इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो गहरी नींद में थे, उनके ऊपर नरेटर का प्लेन जो है वो उड़ान भर रहा था। उस समय नरेटर अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था, और he was flying over France. At that time he was flying over France and he was returning back to England. उस समय नरेटर सोच रहा था उन छुट्टियों के दिनों के बारे में, और वो आतुरता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था कि वो उसके परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय गुजारेगा। I looked at my watch. उस समय
नरेटर ने उसकी घड़ी को देखा और उस समय घड़ी सुबह के 1:30 बजे यानी कि देर रात के 1:30 बजे का संकेत दे रही थी. इट वॉज 1:30 AM. I should call Paris control room. As you know, all the flights are governed by the control room. Okay. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. यहाँ विमान उड़ाते समय नरेटर ने महसूस किया कि मुझे पेरिस के नियंत्रण कक्ष से संबंध स्थापित करने चाहिए, ऐसा उसने सोचा. As I looked down past the nose of the aeroplane, और जब वो विमान के आगे वाले भाग की तरफ देख रहा था, I saw the lights of a big city in front of me. तो उस समय नरेटर ने किसी बड़े शहर की रोशनियाँ जो है अपने सामने देखी. I switched on the radio and said, जो वायरलेस सेट लगा होता है एरोप्लेन में, तो उसने रेडियो स्विच ऑन किया, उसको चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. नाउ वन मैसेज वाज डिलीवर्ड ओवर रेडियो बाय द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा वाज द नरेटर हिमसेल्फ, राइट? Okay, the message was, he was just addressing to Paris control room, said that my plane is Dakota DS 088 here. Now can you hear me? Are you able to get my voice? I am on my way to England over. Here I am flying from France to my way to reach England. ओके. तो उसने कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष में डकोटा DS 088 वायुयान उड़ा रहा हूँ, क्या तुम मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो? राइट. मैं इंग्लैंड लौटने के रास्ते में हूँ, ओवर. ऐसा कह के उसने संदेश पूरा किया. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. ओके. उस रेडियो सेट पर कंट्रोल टावर की जो थी, कंट्रोल रूम की जो भी पर्सन वहाँ पे था, उसकी आवाज़ जो है नरेटर की इस बात का प्रत्युत्तर उसने दिया. ठीक है, तुरंत. DS 088 आई कैन हियर यू. DS 088 ओल्ड डकोटा हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट, मैं आपकी आवाज़ को सुन पा रहा हूँ. देयर वॉज वन लेडी, सॉरी, सुन पा रही हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. DS 088 ओवर. तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ अपने विमान को मोड़ लेना चाहिए. DS 088 जो उसके डकोटा ओल्ड एरोप्लेन का नंबर था, ओवर. यानी ये संदेश समाप्त हुआ. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. मैंने मैप जो फ्लाइट मैप था उसको एक बार पुनः जांचा और जो कंपास जो कि डायरेक्शन शो करता है उसको देखा, और उसने विमान का जो दूसरा ईंधन टैंक था, सेकंड फ्यूल टैंक, उसको उसने चालू किया. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और उसने अपने विमान डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ इंग्लैंड पहुंचने के लिए मोड़ा. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. मैं नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा उस नरेटर ने सोचा. ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. एक अच्छा अंग्रेज लोगों द्वारा किया जाने वाला नाश्ता में उसका आनंद लूँगा, और सब कुछ वहाँ पर ठीक ठाक चल रहा था. ये नरेटर के लिए
एक आसान उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। पेरिस वहाँ जिस स्थान पर इस समय उसका विमान था वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर था। बिहाइंड मी मतलब उसके पीछे। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स स्टॉर्म क्लाउड्स, तभी उसने आकाश में बादलों को देखा। वो तूफ़ानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वो काफ़ी बड़े विशालकाय बादल थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। आकाश में वो काले बादल जो थे वो बड़े काले पहाड़ के समान प्रतीत हो रहे थे, ठीक नरेटर के सामने आकाश में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। नरेटर इस बात को जानता था कि वो इन बादलों के ऊपर उड़ान नहीं भर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और इतना पर्याप्त रूप से ईंधन यानी कि पेट्रोल विमान में नहीं था कि वो उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ अपने विमान को ले जा सके। आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। यहाँ नरेटर ने सोचा कि मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए इन तूफ़ानी बादलों से अपने आप को बचाने के लिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन नरेटर इंग्लैंड अपने घर लौटना चाहता था। वो चाहता था कि इंग्लैंड पहुंचकर वो नाश्ते का आनंद ले या नाश्ता करे जो कि इंग्लिश पीपल द्वारा किया जाता है। आई विल टेक द रिस्क, मैं इस जोखिम को उठाऊंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। ऐसा सोचते हुए उसने अपने ओल्ड डकोटा प्लेन को सीधा उस तूफ़ानी बादलों के बीच उड़ाना प्रारंभ कर दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही उसका विमान बादलों के अंदर पहुंचा तो उसको सब कुछ जो है काला नज़र आने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। ये असंभव था कुछ भी देखना विमान के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वो पुराना जो उसका विमान था वो एकदम हवा में उछला और घूमने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास जो कि दिशा सूचक यंत्र होता है उसकी तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं ये बात विश्वास नहीं कर पाया। ठीक है, माई आइज़ यानी कि जो कुछ वो देख रहा था कंपास की तरफ, वो उस बात पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। यहाँ कंपास में लगी हुई जो सुई थी वो बिना दिशा बताए केवल गोल गोल घूमे जा रही थी। इट वॉज डेड, यानी कि वो कंपास जो था वो खराब हो चुका था। इट वुडंट वर्क, ये अब काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो दूसरे यंत्र विमान में लगे हुए थे वो भी अचानक बंद हो गए थे। टू, वो भी अचानक बंद हो गए। आई ट्राइड द रेडियो। यहाँ उस विमान के चालक नरेटर ने रेडियो पर संदेश देने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस का नियंत्रण कक्ष, क्या आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? देयर वॉज नो आंसर, वहाँ उसकी आवाज़ का कोई प्रत्युत्तर या जवाब नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। न तो अब नरेटर का रेडियो काम कर रहा था, न उसका कंपास ठीक था, न वो देख पा रहा था कि वो उस समय कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। यहाँ नरेटर का विमान तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी,
फिर उन काले बादलों के बीच मेरे बिल्कुल नज़दीक आई सॉ अनदर प्लेन, मैंने एक दूसरे विमान को अपने नज़दीक उड़ान भरते हुए देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों के ऊपर जो है वो कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उस विमान को मेरे ठीक नज़दीक उड़ते हुए उस तूफ़ान में देख रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, वो विमान इतना नज़दीक था कि नरेटर उस विमान को उड़ाने वाले पायलट का चेहरा देख पा रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, पायलट ने अपने विमान को मेरे विमान की तरफ मोड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत प्रसन्न था दूसरे व्यक्ति को जो विमान उड़ा रहा था उसको देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ अपने हाथ को हिलाया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग, फॉलो मी। वो व्यक्ति दूसरे विमान में बैठा हुआ जो पायलट था वो इस एरोप्लेन डकोटा प्लेन के पायलट को, नरेटर को कह रहा था कि मेरा अनुसरण करो, मेरे विमान के पीछे पीछे आओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, वो विमान चालक ये जानता था कि मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, ऐसा उस ओल्ड डकोटा प्लेन के पायलट ने सोचा कि ये दूसरे विमान का जो चालक है वो मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से उसका विमान उत्तर दिशा की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा प्लेन के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि ये काम आसान हो जाए कि मैं उसके विमान का अनुसरण कर सकूं, यानी कि अपने विमान को उसके विमान के पीछे ले जा सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं खुश था उस विचित्र अजनबी वायुयान के पीछे अपने विमान को उड़ाकर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर half an hour, the strange black aeroplane was still in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद वो अजनबी काले रंग का विमान जो था वो ठीक मेरे सामने था बादलों के बीच। Now, there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब केवल इतना पर्याप्त ईंधन ओल्ड डकोटा नरेटर के एरोप्लेन में था कि वो अगले 5 या 10 मिनट तक उसके विमान को उड़ा सके, इतना ही ईंधन या पेट्रोल उसमें शेष बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, मैं जो है दोबारा से अपने आप को भयभीत महसूस करना प्रारंभ कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, फिर मैंने देखा कि वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट धीरे धीरे उसके विमान को नीचे की ओर ले जा रहा था और मैंने उस तूफान में उस विमान का अनुसरण करते हुए मैंने भी अपने एरोप्लेन को नीचे की ओर ले जाना प्रारंभ किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं बादलों से अपने विमान को बाहर लेकर आया और मैंने देखा कि लंबी रोशनी की कतार मुझे मेरे सामने नज़र आ रही थी। आपको पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट पर जो रनवे होता है उसके दोनों तरफ
लाइट्स लगी होती हैं ताकि रात में पायलट को अपना विमान उतारने में सुविधा रहे। इट वॉज ए रनवे, ये जो रोशनी थी जो उसे नज़र आ रही थी वो जो विमान को उतारने की जो पट्टी होती है रनवे उसकी थी। एन एयरपोर्ट आई वॉज सेफ, यहाँ डकोटा प्लेन उड़ाने वाले पायलट यानी कि नरेटर ने कहा कि ये एक हवाई अड्डा था, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। यहाँ नरेटर पीछे मुड़कर उस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखने का उसने प्रयास किया, लेकिन उस समय उसे आकाश बिल्कुल खाली नजर आया। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ आकाश में उसे कोई ब्लैक एरोप्लेन उड़ता हुआ नज़र नहीं आया। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो काला वायुयान था, विमान था, वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने अपने विमान को उतारा, ओके, और मैं बिल्कुल भी दुख महसूस नहीं कर रहा था। विमान से उतरते ही सीधा मैं अपने ओल्ड डकोटा प्लेन के पास से होता हुआ कंट्रोल टावर की तरफ गया। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैं सीधा गया कंट्रोल टावर में, जो एक लेडी ऑपरेटर वहाँ पे थी, ठीक है। मैंने जाते उससे पूछा कि मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट जो ब्लैक एरोप्लेन को उड़ा रहा था वो कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं ब्लैक एरोप्लेन उड़ाने वाले पायलट को मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो उस महिला ने जो कंट्रोल टावर में थी उसने बड़ी विचित्र निगाहों से यहाँ नरेटर की ओर देखा और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप इन दिस स्टॉर्म, दूसरा विमान इस तूफान में ऊपर आकाश में। नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी दूसरा विमान आज रात आकाश में नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, मैंने अपने कंट्रोल टावर के रडार में केवल तुम्हारे ही विमान को उड़ान भरते हुए देखा इस तूफान में। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब नरेटर के सामने ये प्रश्न दिमाग में आया, तो किसने मेरी मदद की यहाँ तक, इस हवाई अड्डे तक सुरक्षित पहुँचने में, वो भी बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो सेट के, और बिना ज़्यादा अधिक ईंधन जो कि मेरे विमान के टैंक में था। तो मनी मन वो लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहा था ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। अब उसके मन में प्रश्न उठा कि वो पायलट कौन था, ठीक है, जो कि उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन को तूफान में उड़ा रहा था, और वो भी बिना किसी रोशनी के, बिना किसी लाइट के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। I already sent you PDF of this chapter, so kindly go through it. This is all about your syllabus for half-yearly exam. As far as your topic of tense and models is concerned, no question will be asked from that topic. Okay, so no need to have any sort of tension regarding it. Okay, wish you all the best.